بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ملک عرب کے کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام مختار تھا۔ مختار اپنی بیوی جمیلہ کے ساتھ ایک سادہ گھر میں رہتا تھا۔ ان کے ہاں چند دن پہلے ہی 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، اس لیے گھر میں خوشی کا سما تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خوشی زیادہ دن قائم نہیں رہے گی۔ ایک دن مختار کو کام کے سلسلے میں کسی قافلے کے ساتھ دوسرے شہر میں جانا پڑا۔ ادھر گھر میں جمیلہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس بات کو چند دن ہی گزرے تھے کہ گاؤں میں شدید قحط پڑ گیا۔ جمیلہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا کہ وہ اسے بیچ کر بچوں کا پیٹ پال سکے۔ لیکن اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ رات صحرا کی بھیانک رات تھی جب جمیلہ ریت پر چل رہی تھی۔ اس کی گود میں 2 ناتواں بچے تھے۔ وہ انہیں دھیمی آواز میں تسلی دے رہی تھی۔ صبر کرو میرے بیٹو، شاید اللہ ہم پر اپنی رحمت بھیج دے۔ بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بنو حزیل کی قبیلے میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا، کیونکہ قحط نے سب کچھ ختم کر دیا تھا اور غربت خیموں کی مالکن بن گئی تھی۔ جب جمیلہ وادی الذئاب پہنچی تو ایک چٹان پر بیٹھ گئی اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر لرزتے ہوئے آواز میں بولی، اے رب، تو مجھ سے ان پر زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر تو ان کی زندگی چاہتا ہے تو انہیں محفوظ رکھ، اور اگر موت ان کے لیے بہتر ہے تو ان پر رحم کر۔ پھر اس نے ایک بچے کو وادی کے ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف رکھ دیا، اپنی پرانی شال سے ڈھانپ دیا اور ان کو چھوڑ کر چل پڑی۔ جب وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، خدایا، بھیڑیوں کو انسانوں سے زیادہ رحمدل بنا دینا۔ پھر وہ اندھیرے میں چلتی رہی یہاں تک کہ غائب ہو گئی۔ اگلے دن کی صبح صحرا میں یمن کے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، جس کی قیادت شیخ سعید بن جوہر کر رہے تھے۔ وہ قافلہ شمال کی طرف لے جا رہے تھے کہ اچانک ان کے اونٹ صحرائی وادی کے کنارے رک گئے، جیسے انہوں نے کوئی انجان چیز محسوس کی ہو۔ قافلے کے ایک آدمی نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ یہ آواز سن رہے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ سسکی کی آواز لگتی ہے۔ شیخ فوراً اونٹ سے نیچے اترے اور آواز کی طرف بڑھے۔ وہاں انہیں 2 چھوٹے بچے ملے، ایک پرانی شال میں لپٹے ہوئے۔ سعید گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، بچوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور حیرت بھری آواز میں بولے، کیا کہنے اس ذات کے جس نے انہیں اس جگہ زندہ رکھا جہاں کچھ بھی زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے انہیں اپنے مشکیزے سے پانی پلایا اور اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ہم انہیں یمن لے جائیں گے۔ شاید اللہ نے انہیں بھیجا ہے تاکہ وہ میری عمر کے خلا کو پورا کریں۔ قافلہ ریت چیرتا ہوا چلتا رہا۔ بچے اونٹ پر سوار اس کے کجاوے میں کپڑوں اور پانی کے درمیان محفوظ تھے۔ رات کو قافلہ ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب سعید نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بچے کی سانس کی تکلیف بھری آواز سنی۔ وہ اٹھے، اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، تمہیں میں سالم نام دوں گا کیونکہ تم موت سے بچ گئے ہو، اور تم میرے چھوٹے، تمہیں رما نام دوں گا تاکہ تم تقدیر کے سامنے لوہے کی طرح مضبوط رہو۔ قافلہ یمن کی طرف چلتا رہا اور آخر کار وہ یمن پہنچ گئے، جہاں پر دونوں بچے شیخ سعید بن جوہر کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ کافی وقت گزر گیا، دونوں لڑکے بڑے ہوئے، ان میں طاقت اور ذہانت کے آثار نمایاں ہوئے۔ چند سال گزر گئے، سالم شیخ کی تجارت سنبھالنے لگا، بازاروں میں جاتا، راستوں، قیمتوں اور لوگوں کے اخلاق کو جانتا۔ رما محافظوں کا سردار بن گیا، تلوار سے قافلوں کی حفاظت کرتا اور بھائی کے ساتھ ہر سفر پر جاتا۔ ایک پرسکون شام شیخ نے دونوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آنکھوں کی آواز آخری سانس سے مل کر بولی، میرے بیٹو، تمہاری رگوں میں خالص عرب خون ہے، یاد رکھو، انسان اپنی قدر تب جانتا ہے جب اپنی اصل زمین پر واپس آئے۔ وہ روئے،
जब उनके बिस्तर के पास बैठे, उनके हाथ थामे, फिर आंखें बंद की, एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ, जैसे दूर से कुछ देख लिया हो जो दूसरों ने नहीं देखा। सईद को यमन में दफन किया गया। चंद दिन बाद जब सालिम और रिमा सामान तरतीब दे रहे थे तो एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला, पुराने मोहर से बंद, जिस पर बनु हजील का नक्श था। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। रिमा ने कहा, यह तो हिजाज के कबीले की है, शेख का इससे क्या ताल्लुक? सालिम ने एहतियात से संदूक खोला। अंदर एक पुराना खत था जिस पर लिखा हुआ था, बनु नासिर को उनके भाई सईद बिन जौहर की तरफ से। सालिम रुक गया, आवाज कांप रही थी। बनु नासिर? ये नाम मैंने बाजार में एक बूढ़े के मुंह से सुना था। क्या ये शुमाल की इस कबीले का नसब है जिस पर गजब किया गया था? 15 साल गुजर गए। सालिम और रिमा यमन के बड़े काफिला ताजिर बन चुके थे। हर कामयाबी के साथ उनके अंदर दूर की घंटी की आवाज सी कुछ हिलता, शेख सईद का वादा याद दिलाता। इंसान अपनी कदर तब जानता है जब अपनी असल जमीन पर वापस आए। एक शाम जब वो साहिल की तरफ देखती एक बुलंदी पर बैठे थे, रिमा ने कहा, सालिम, मुझे अब तिजारत और माल अच्छा नहीं लगता। मेरे खून में कुछ मुझे शुमाल की तरफ, इस सहरा की तरफ खींच रहा है जिससे हम बचे थे। सालिम ने पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, तो फिर चले, शायद वो खत और वो मुहर हमें उस हकीकत की तरफ ले जाए जिसे हम नहीं जानते। इस तरह वो सफर शुरू हुआ जो उनके मुकद्दर बदलने वाला था। उनका काफिला शुमाल की तरफ चला। जब वो बनु हजील की सरहद पर पहुंचे तो सफर के लिबास पहने नए ताजिरों की शक्ल में दाखिल हुए। उन्होंने एक पहाड़ और वादी के दरमियान जगह ली, एक सूखी जमीन खरीदी जिसे कोई नहीं चाहता था। उन्होंने वहां कुआं खोदा। लोगों ने कहा था कि यहां पानी नहीं निकलेगा। दूसरों ने भी कोशिश की थी मगर वो डटे रहे। चंद दिन की मुशक्कत के बाद पानी फूट निकला। जब वो कुआं खोदें तो कुछ मशकूक लोग उन्हें मना करने आए, क्योंकि वहां एक पहले से कुआं मौजूद था जिसका पानी शेख नासिर और उसके लोग बेच रहे थे और लोगों से जबरदस्ती पैसा कमा रहे थे। उन्होंने धमकी दी कि ये जगह उनकी है और कोई नया कुआं नहीं खोदा जा सकता। मगर सालिम और रिमा ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। उन्होंने जबरदस्ती मेहनत जारी रखी और अल्लाह की रहमत से उनकी मेहनत रंग लाई। पानी निकल आया, साफ और मीठा। लेकिन गांव का सरदार शेख नासिर खामोश न रहा। उसने रात के अंधेरे में अपने आदमी भेजे। जब सालिम और रिमा सो रहे थे तो उन पर अचानक हमला कर दिया गया। तलवारों की चिंगारियां निकली। सालिम शदीद जख्मी हो गया। उसके कंधे पर गहरा जख्म था। रिमा किसी तरह लड़ते हुए बच निकला और भाई को बचाने में कामयाब हुआ। अगले दिन बाजार में गलत अफवाहें फैलाई गईं कि ये दोनों अजनबी बेईमानी से कारोबार करते हैं, पानी चोरी करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। इधर रमा ने गांव के एक मशहूर हकीम को फौरन बुलाया और भाई का इलाज शुरू कर दिया। वो दिन रात सालिम की खिदमत करता, दवा पिलाता, जख्म की मरहम पट्टी करता और साथ साथ कारोबार भी संभालता रहा। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। रमा की इस लगन और मेहनत की वजह से उनके दुश्मन उनका कारोबार बंद न कर सके। एक खामोश रात उन्होंने अपने जासूस जासिर को भेजा। जासिर खीमे में छुप कर गया और वापस आया तो खबर लेकर आया जो सब बदल देगी। ऐ शेख नासिर, इनके सामान में एक मोहर मिली है जिस पर बनु हुजील का नक्श है, बिल्कुल आपकी पुराने मोहर जैसा। शेख नासिर का चेहरा सख्त हो गया। गामिज आवाज में बोले, ये तो मेरे भाई की मोहर है जो 25 साल पहले अपनी बीवी और बच्चों के साथ सहरा में गुम हो गया था। फिर आवाज कांपती हुई बोली, अगर तुम जो कह रहे हो सच है तो ये अजनबी नहीं, हमारे अपने हैं। हमने गलत किया है। बनु हुजील में अगली शाम गर्म और पुरसुकून थी। मजलिस शयूख और ताजिरों से भरी हुई थी। एक कोने में सालिम खामोशी से बैठा था। एक बूढ़े शेख ने पुरानी कैद की याद ताज़ा करते हुए
सिसकी भरी आवाज में कहा, इस साल को हम साले रमात कहते हैं। लोगों ने इसमें वो कुछ खाया जो खाने के लायक नहीं था। बहुत सी औरतें और बच्चे गुम हो गए, यहां तक कि जमीला बिन्त नासिर, जिसे पूरी कबीले ने लानत भेजी थी क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को सहरा में छोड़कर खुद बच निकलने की कोशिश की थी। जमीला का नाम सुनते ही सालिम का चेहरा यकदम बदल गया, जैसे कोई पुरानी याद इस पर वार कर गई हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो रात गए अपने खैमे में वापस आया। रमा अपनी तलवार साफ कर रहा था। सालिम ने धीमी आवाज में पूछा, रमा, क्या तुम जानते हो जमीला बिन्त नासिर कौन है? रमा ने सर उठाया और हैरान होकर बोला, आज ही इसका जिक्र सुना है। लोग कहते हैं वो पागल औरत है। सालिम एक लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर इसके नाम में कुछ है जो मुझे इसकी तरफ खींच रहा है, जैसे मैंने ये नाम कभी ख्वाब में सुना हो। रमा हंसा और बोला, ये मजलिसों की खराफात हैं, इसे जाने दो, मगर मैं खुद जाकर देखूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे रिमा अपने घोड़े पर सवार हुआ और कबीले के किनारे उस तरफ चला जहां एक पुराना झुका हुआ खैमा एक अलग टीले पर खड़ा था। वहां एक औरत आग के सामने बैठी थी। कांपते हाथों से जौ का एक छोटा कुर्स पलट रही थी। रिमा करीब बैठा, टूटे हुए हुस्न के आसार देखे उसने आवाज दी, ए अम्मा, क्या तुम जमीला बिन्त नासिर हो? औरत ने आहिस्ता सर उठाया, हैरत से देखा और बोली, कौन पूछ रहा है? जमीला के बारे में? रिमा ने कहा, एक अजनबी जो कबीले की कहानियां सुन रहा है और हैरान है कि एक औरत अपने बच्चों को सहरा में छोड़कर खुद बच कैसे निकल आई। क्या जो कुछ लोग कहते हैं वो सच है? जमीला कांप उठी, आंखें झुकाकर बोली, सच है, मगर यह भागना नहीं था, बल्कि तकदीर का बोझ था जो उठाने से बाहर था। हम भूखे मर रहे थे। उनका बाप रात के छापे में मारा गया था। मैंने उन्हें एक जगह छोड़ा जहां भेड़िए भी नहीं थे। रिमा ने फिर पूछा, आवाज भरी हुई, क्या तुमने उनकी तलाश की? जमीला रोती रही। चंद दिन बाद वापस गई, मगर भेड़िए मुझसे पहले चुके थे। मुझे बताया गया कि वो मर चुके हैं। इसके बाद मैं हर रोज उनके साथ मरती रही। रिमा खामोश रहा और वापस आया और सालिम को सारी बात बताई। सालिम ने लंबा सुकूत किया, फिर बोला, रिमा, मैं खुद उसे देखना चाहता हूं। अगले शाम दोनों भाई मिलकर गए। जब सालिम खैमे में दाखिल हुआ तो जमीला ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ये नजर, क्या तुम दोनों हो? सालिम हैरान होकर आगे बढ़ा और टूटी आवाज में बोला, तुम कौन हो और क्या मतलब है तुम्हारा? जमीला की आवाज कांप रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, मैं जमीला हूं। सुबह उसने फैसला कर लिया। ताजिर के लिबास में मलबूस हुआ, हाथ में खजूर और आटे का तोहफा लेकर उसके खैमे की तरफ चला। वो चाहता था कि वो सब कुछ सुने, मगर मां की निगाह से नहीं, बल्कि एक अजनबी की निगाह से। वहां पहुंचकर उसने नर्म आवाज में कहा, ए अम्मा, ये एक मुसाफिर की तरफ से सदका है। जमीला लड़खड़ाती हुई बाहर निकली, जैसे कोई साया हो। उसने शुक्रिया अदा किया और बैठने को कहा। रिमा आग के करीब बैठा और आहिस्ता लहजे में बोला, कबीले में लोग कहते हैं कि तुम अपने दिल में कोई पुराना राज रखती हो। क्या तुम उसे हमेशा के लिए छुपाए रखना चाहती हमी? जमीला ने उसे देर तक देखा, फिर टूटी हुई आवाज में बोली, हम गरीब थे, मेरे बच्चे प्यास से रो रहे थे। मैं सहरा में निकली कि कोई हम पर रहम करे, मगर कुछ न मिल। मैंने उन्हें 2 पहाड़ों के दरमियान वादी में छोड़ दिया और कहा, शायद मेरा रब उन पर रहमत नाजिल करे। फिर भाग निकली। दिल में ताकत न थी कि अलविदा कह सकूं। उसकी आवाज लरज उठी। बक्का ने उसे घूंट लिया। उस रात मैंने भेड़ियों का कोई आवाज नहीं सुनी।
तो मैंने जान लिया कि अल्लाह ने उन पर रहम किया। जब वो बात खत्म कर चुकी तो रिमा आंसू भरी आंखों से बोल उठा, ऐ अम्मा, शायद रहमत आसमान से नहीं आई थी, बल्कि अल्लाह ने एक गुजरते हुए काफिले के जरिए भेजी थी। वो तेजी से खैमे से बाहर निकल आया। वो अंधेरे में चलता रहा। अपने घर में पहुंचकर देखा तो सालिम उसका इंतजार कर रहा था। रिमा की आवाज भरी हुई थी, सालिम, हमारी मां मिल गई है। सालिम अचानक उठ खड़ा हुआ, आंखें हैरत से फटी हुई थीं। क्या कह रहे हो, हमारी मां? रिमा ने आंखें बंद करते हुए सर हिलाया। हां, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, बिल्कुल वैसे जैसे सहरा ने हमें बताया था जब हम उसमें जल रहे थे। फिर सालिम ने कहा, अभी फैसला ना करो, हम दोनों उसके पास जाएंगे, मगर अजनबियों की तरह। अगले दिन सुबह दोनों भाई ताजिर के लिबास में उसके कच्चे खैमे में दाखिल हुए। सालिम ने आगे बढ़कर खजूर और आटे का तोहफा पेश किया और नर्म आवाज में कहा, ए अम्मा, हम तुम्हारे लिए एक नया घर बनाना चाहते हैं। जमीला बोली, मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर तुम दोनों के चेहरों में अजीब सा मुशाबा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने उन बेटों को देख रही हूं जिन्हें तकदीर ने मुझसे छीन लिया था। एक रात जब वो अपने पुराने दिनों की कहानियां सुना रही थी तो जमीला ने एक पुरानी शाल निकाली और आंसू भरी आंखों से कहा, ये मैं अपने बेटों के कपड़े का एक टुकड़ा रखे हुए थी। ये मेरी वाहिद यादगार था। रिमा ने कांपते हाथों से वो टुकड़ा लिया। सालिम ने देखा तो उसका जिस्म जम सा गया। ये वही टुकड़ा था जो शेख सईद बिन जौहर ने वादी में उनके साथ पाया था। सालिम ने रिमा की तरफ देखा, फिर पुख्ता आवाज में बोला, ए अम्मा, अब हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह ने लिखा है उसे जाहिर होना चाहिए। उसने जेब से वही पुराना कपड़े का टुकड़ा निकाला और भरी हुई आवाज में बोला, ये टुकड़ा अम्मा हमारे साथ था जब हमें वादी से बचाया गया। हम वही दो बच्चे हैं जिन्हें तुमने सहरा में छोड़ दिया था। जमीला जमकर रह गई। उसने हाथ बढ़ाए, कुछ कहना चाहा, मगर आवाज न निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रिमा घबराकर चीखा, अम्मी, अम्मी! सालिम ने फौरन उसे उठाया, बिस्तर पर लिटाया और पानी के कतरे पिलाए। कई घंटों बाद जब वो होश में आई तो उसकी आंखें अपने बालिग बेटों पर खुली। वो देर तक रोई, फिर आवाज भरे घूंटों में बोली, मैंने सोचा था कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया, तो फिर मुझे भी नदामत ने मार दिया। 25 साल तक हर रात तुम्हारी रोती हुई आवाजें हुआ मैं सुनती थी और कान बंद कर लेती थी कि पागल ना हो जाऊं। रिमा रोता हुआ उसके कदमों में बैठ गया। उसके हाथ चूमते हुए रो रहा था। सालिम आंसू रोकते हुए खड़ा रहा और धीमी आवाज में बोला, हमने तुम्हें माफ कर दिया अम्मा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। कसूर भूख का था और जमाने का। जमीला ने दोनों को बाजुओं में भर लिया, जैसे तमाम गुजरे सालों को एक साथ गले लगाना चाहती हो। वो मुस्कुराती हुई आंसुओं के साथ बोली, शुक्र है अल्लाह का जिसने मौत से पहले मुझे मेरा दिल वापस कर दिया। मगर तकदीर को उसकी खुशी मुकम्मल नहीं करनी थी। जब सालिम एक पुराना संदूक निकालकर उसे दिखा रहा था जो शेख सईद ने छोड़ा था, तो जमीला ने इन चीजों में से एक पुराना खातम उठा लिया। उसका नक्श उसकी कबीले में मशहूर था। उसने आंखें फाड़कर पूछा, यह खातम तुम्हें कहां से मिला? सालिम ने बताया, यह शेख सईद बिन जौहर का खातम है जिन्होंने हमें पाला। जमीला कांप उठी, चेहरा सफेद पड़ गया। सईद बिन जौहर? ऐ मेरे अल्लाह, वो मेरे खालू हैं, मेरे अब्बा के भाई। कबीले ने उनसे पुराने खून के झगड़े की वजह से बारात की थी। रिमा हैरान रह गया। जमीला ने आंखों में आंसू भरे हुए कहा, यानी तुम्हें बचाने वाला और पालने वाला भी मेरे ही खून का था। यह खबर आग की तरह बनु हजील की कबीले में फैल गई। वो राज जो 25 साल तक छुपा रहा था, तकदीर ने एक ही रात में खोल दिया। लोग हैरान, यकीन न करने वाले,
माफी मांगने वाले और रोते हुए जमा होने लगे। नई मजलिस लगी। शेख नासिर बिन हस्सान ने ऐलान किया, ये दोनों सालिम और रिमा जमीला बिन्त नासिर के वो बेटे हैं जिन्हें लोगों ने कहा था कि भेड़ियों ने नोच खाया, मगर अल्लाह ने उनके लिए रहमत भेजी। जमीला ने हाथ आसमान की तरफ उठाए और लरसती आवाज में कहा, पाक है वो जात जो कमजोर पर उसकी सबसे सख्त खड़ी में रहम करता है। सालिम ने अपनी तलवार पर टेक लगाकर कबीले के सामने कहा, लोगों ने हमें भेड़ियों के बेटे कहा, मगर भेड़ियों ने हमें नहीं काटा, बल्कि भूख ने लोगों को काटा था जब उन्होंने एक औरत और उसके बच्चों को गुर्बत और जिल्लत में छोड़ दिया। एक पुरसुकून रात जब सालिम ने शेख सईद की पुरानी चट्टी को दोबारा खोला और उसके फरसूदा सत्रों को कांपती आवाज में पढ़ा। अगले दिन सुबह सालिम मजलिसे बनु नासिर में गया और चट्टी सबके सामने पढ़कर सुनाई। बूढ़े शिवूख रो पड़े। एक ने आगे बढ़कर कहा, अल्लाह ने 2 नस्लों के खून और कुदूरत के बाद तुमसे सुलह करा दी है, तू हम जिंदा लोग क्यों ना सुलह करें। उस दिन बनु नासिर और बनु हजील ने एक दूसरे से गले मिले। ऊंट ज़िबा किए गए। लड़ाई की जमीन, बाजार, पानी और चिरागाह बन गई। अरबों में उस दिन को माफी का दिन कहा जाने लगा। शाम को सालिम एक चट्टान पर बैठा कुएं की तरफ देख रहा था। उसके पास रिमा बैठा था। रिमा ने सोचते हुए कहा, कितना अजीब है अल्लाह का तरीका इंसान के साथ। हम सोचते थे भेड़ें हमें खा जाएंगी, मगर उन्होंने हमें इंसानों के भूख से बचाया। सालिम ने आंखें बंद करते हुए जवाब दिया, भेड़िए उन्हें नहीं खाते जिनके लिए अल्लाह ने निजात लिख दी हो, वो तो गुनाहों वालों को खाते हैं, यहां तक कि रहमत से पाक हो जाएं।